Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. Students, in the previous science session, in the previous classes, we have done till page number 17. Now we are going to end this topic in today's class. So everyone open your books and open page number 18 of the book. 1.5, the human digestive system. The human digestive system is made up of a tube called the alimentary canal, gut, liver, and pancreas and gallbladder. Food travels through the body along the alimentary canal, which is a continuous tube beginning at the mouth and ending at the anus. बेटा अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, वो ट्यूब से बने हुए होते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब से फॉर्म हुए हुए होते हैं. अब बेटा उन ट्यूब को हम नाम दे देते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, उन ट्यूब को हम नाम दे देते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल से बने हुए होते हैं, वो लिवर से बने हुए होते हैं और गोल ब्लैडर से. मतलब ट्यूब जो होती है वो बनी हुई होती है एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कह सकते हैं, लिवर से, पैनक्रियास से और गोल ब्लैडर से. एंड यू ऑल नो दैट whenever we are talking about when we eat anything, okay, when we are eating anything, so it means that food travels through the body along alimentary canal. बेटा food जो है वो कहाँ से travel करता है हमारी बॉडी में? एलिमेंट्री कैनाल से. ठीक है, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल है क्या बेटा? जो माउथ से प्रोसेस स्टार्ट होके एनस तक प्रोसेस जाता है, हम उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ओके, इन विच वी कैन इन विच फूड कैन ट्रेवल थ्रू द बॉडी. बेटा फूड कैसे, जब हम ईट करते हैं फूड को तो माउथ से कहाँ तक ये सारे प्रोसेसेस होंगे, इसमें जाकर जो लास्ट वाले में होगा वो होगा एनस में. ऑल राइट, सो इट मीन्स दैट पेज नंबर 18 पे जो है अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि फूड कैसे ट्रेवल होता है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है. ओके, the human digestive system. Beta, human digestive system comprises of mouth. You can see here is the mouth. It is esophagus, and this is called stomach. This is pancreas. These are the pancreas, okay? And this is small intestines, and these are large intestines. This is anus, and this is rectum. It's called rectum. And this part is called gallbladder, and it is called liver. And what are their functions? बेटा अब इन सब organs के functions क्या हैं? इन सब organs के functions क्या हैं? जरा अब हम उनको detailed में define करेंगे. Now first of all, coming to mouth. When we are starting with the mouth, digestion of food starts in the mouth. The food that we put into our mouth is broken down into smaller pieces by the action of our teeth. Breaking up food into smaller pieces increases the surface area of the food for the digestive enzymes to act on. The food then mixed with saliva and its enzymes. Salivary and amylases. Salivary amylase breaks down large starch molecules into small maltose molecules. However, food is usually not kept long enough in the mouth for all the starch to be broken down into simple sugars. The tongue rolls the partially digested food into small balls, which are then swallowed into the esophagus or gullet. Okay, students, if we are talking about the mouth, so what is the function of mouth in the digestion of food? That it starts from the mouth. Okay, जब digestion of food की हम बात कर रहे हैं तो वो सबसे पहले start होता है बेटा mouth से. ठीक है, just wait a second. So when we eat anything and when we eat any food, so it starts with the mouth.
अब बेटा जो फूड हम अपने माउथ में रखते हैं, मतलब कि हम उसे ईट करने के लिए अपने माउथ में जब प्लेस करते हैं, तो वो क्या होता है, उस फूड को जो है हमारे टीथ के थ्रू उस फूड को स्मॉलर और स्मॉलर पीसेस में क्या कर देता है बेटा, हमारे टीथ उसको ब्रेक कर देते हैं, स्मॉलर पीसेस में हमारे खाने को ब्रेक कर। ऑब्वियसली हम खाना जो है वो एकदम से तो सारा च्यू नहीं कर सकते, बल्कि आराम आराम से जो च्यू करते हैं, हमारे टीथ क्या हेल्प करते हैं खाने को च्यू करने में, ताकि जो है वो स्मॉल और स्मॉलर पीसेस में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए और उसका जो फूड का सरफेस एरिया हो वो क्या हो, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए। बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, those enzymes which take place when digestion acts over there, okay? And when the food is mixed with saliva, बेटा जब food जो है saliva के साथ mix होता है तो इसके इसका एंजाइम क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है salivary amylase, ठीक है? ये क्या होता है, इसके साथ मिक्स हो जाता है, क्या हमारा फूड जो है वो सलाइवा के साथ क्या हो जाता है बेटा, मिक्स हो जाता है। सलाइवरी एमाइलिस का बेटा वो क्या होता है फंक्शन, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मेल्टोस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑल राइट, अब बेटा मैंने आप लोगों को सलाइवरी एमाइलिस का बता दिया है कि वो क्या करता है, स्टार्च मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मेल्टोस मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और सलाइवरी एमाइलिस क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स होते हैं जब डाइजेशन ऑफ फूड जो है प्रोसेस में होता है, मतलब जब डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा होता है तो ये एंजाइम्स जो होते हैं इसके अंदर जब मिक्स होते हैं सलाइवा के साथ, इसको बेटा इस एंजाइम्स को बोलते हैं हम सलाइवरी एमाइलिस। जबकि वो फूड जो है बेटा हमारे लिए द however food is usually not kept long enough in the mouth for all the starch to be broken down into simple sugars। बेटा जबकि जो है हम फूड को अपने माउथ में देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या होता है बेटा, स्टार्च, मतलब जो हमारे माउथ के अंदर जो स्टार्च होगा वो ताकि और ज्यादा ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है। The tongue rolls the partially digested food into small balls which are then swallowed into the esophagus or gullet। बेटा अगर हम बात कर रहे हैं जब हमारी टंग जो है हम लोग च्यू करते हैं जैसे टीथ के थ्रू फूड, तो उसके बाद जो है हमारी टंग से क्या होता है, ये रोल होके नीचे जो है हम इसे क्या कर देते हैं, स्वेलो कर लेते हैं अपने ऑसिफोगस और गिलेट में। ऑसिफोगस और गिलेट होता क्या है बेटा, the esophagus called gullet is narrow tube with a strong muscle in its wall. These muscles contract and relax, producing a wave-like pattern which pushes the food along the esophagus to the stomach. The involuntary wave-like muscular contractions by which food is moved through the alimentary canal is called peristalsis. The function of the esophagus to push the ball of the food from mouth into stomach। बेटा अगर हम esophagus की मतलब गलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होती है बेटा, नैरो ट्यूब्स होती हैं जो मसल्स से बनी हुई होती हैं, ठीक है। These are the narrow tubes which are formed by the muscles, okay। When we eat the food and when I chew that, मैंने जैसे ही chew किया बेटा वो food, अब जब वो swallow होके जब मेरे स्टमक के अंदर तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, स्टमक से पहले बेटा वो क्या ऑसोफेगस में जाएगा, मतलब गलेट में जाएगा। ये क्या होती है, नैरो ट्यूब्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग मसल्स से बनी हुई होती हैं। अब बेटा ये मसल्स क्या करते हैं कि जितने क्वांटिटी के हम फूड जो है ब्रेक डाउन होते रहेंगे उतने ये क्या होती रहेंगी बेटा, मसल्स उतनी स्ट्रेच होती रहेंगी, मतलब रिलैक्स होती रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब
ये खुलेंगी उतना उतना, क्योंकि एक अगर जैसे ये देखें बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि अगर ऐसे जा रहा है फूड, वो क्या होगा कि इधर से जो है थोड़ा सा रिलैक्स करेंगी, इधर से ओपन हो जाएंगी, और नीचे जाते 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 क्या हो जाएंगी, वो एक फॉर्म में आ जाएंगी वापस। ऐसे ही बेटा इधर देखें, इधर फूड आ रहा है, फिर इसमें इधर से इधर जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑसोफेगस। ऑल राइट बेटा, ऑसोफेगस का मैं एक और बता देती हूँ आप लोगों को कि ऑसोफेगस क्या होती है, मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। अब बेटा इसकी जो पेरिस्टल साइज होती है, ठीक है, पेरिस्टल साइज क्या होती है कि ऑसोफ कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जब हम फूड करते हुए कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टल साइज। ऑल राइट,